Dear students, let us discuss another classification which is based on type of particle of dispersed phase. Dispersed phase कौन constitute करता? Colloidal solution में dispersed phase is constituted by colloidal particles. So this classification of colloids is based on type of particle of colloid, that is dispersed phase. We have classified the colloids into three types on the basis of this classification: multi-molecular colloids, macromolecular colloids, and associated colloids, जिनको हम माइसिल्स भी कहते हैं. We call them as माइसिल्स. पहले हम पढ़ेंगे बच्चे multi-molecular colloids. Multi-molecular colloids क्या है बच्चे? ये वो colloids हैं जो association, aggregation of particles, large number of small atoms or particles से बनते हैं. These are the colloids which are formed by the aggregation of large number of atoms or small molecules of substance. Small molecules of substance. So when on dissolution, large number of atoms or smaller molecules of substance aggregate together to form particles of colloidal size. The particles thus formed are called as multi-molecular colloids. एटम भी इसमें करते हैं, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल ही हो, पर नाम मल्टी-मॉलिक्यूलर कोलाइड ही दिया है. इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर वर्ड से पता चलता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन से कोलाइडल पार्टिकल बना है. सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट एक्टिंग एज कोलाइड. लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेटिंग टुगेदर टू फॉर्म द colloidal particle. That is why they are called as multi-molecular colloid. फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखिए, जैसे गोल्ड है. अब गोल्ड का सॉल क्या होता है बच्चे? जब हम सॉल वर्ड यूज करते हैं, इट मीन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल. जब हम गोल्ड सॉल बनाना चाहते हैं तो क्या आप डायरेक्ट गोल्ड को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं? पानी में बनाना है? नो, यू कैन नॉट. आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम गोल्ड के एटम्स को इन वाटर जनरेट करते हैं. गोल्ड के एटम्स की टेंडेंसी वाटर में रहने की है नहीं बच्चे. व्हाट हैपेंस? दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग गोल्ड एटम्स and form particles of colloidal size, and we get colloidal solution of gold. Similarly, sulfur acid molecules, they also have no tendency to remain in water. तो आप सल्फर मॉलिक्यूल्स को, सल्फर को तैयार करेंगे इन वाटर ही उनको प्रिपेयर करें, सल्फर के मॉलिक्यूल्स, एंड दी सल्फर मॉलिक्यूल स्टार्ट एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी विद इन द क्या बच्चे, वाटर, and form particles of colloidal size. Single molecule of it cannot act as particle of colloidal size. Single particle has very small size, but single particle की water में रहने की tendency नहीं है. Water में हमने इनको तैयार तो कर दिया, but they have very less tendency to remain in water. What happens? They start aggregating. उसकी वजह से इनका साइज बढ़ जाता है, and we get colloidal solution. Within the colloid, जो colloid बना एग्रीगेशन से, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इनको बांध के रखे? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द पार्टिकल्स विद इन द मल्टी मॉलिक्यूलर colloids are held together by van der Waals force of attraction. These particles may be atoms or molecules. Most lyophobic salts belong to this category. मैंने गोल्ड की बात की. गोल्ड इज ए लाइफोबिक colloid. गोल्ड कौन सा colloid बनाता है बच्चे? लाइफ. बिकॉज गोल्ड हैज नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम. Gold has no affinity for water. We are using water as dispersion medium. Sulfur has no affinity for dispersion medium. ज्यादातर जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. उसके बाद बच्चे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड. इसमें क्या होता है? मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, जैसे नाम से पता चलता है बच्चे, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर दोस इन विच जो कोलाइड है उसका खुद का साइज इतना बड़ा है. कोलाइडल पार्टिकल, colloids in which particles of dispersed phase are themselves large molecules of colloidal dimension. ठीक है बच्चे?
जो पार्टिकल्स हैं दे आर व्हाट कोलाइडल डायमेंशन, उनका खुद का साइज इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल डायमेंशन के होते हैं। कोलाइडल डायमेंशन मतलब देयर पार्टिकल साइज इज इन द रेंज ऑफ 10 angstrom to 1000 angstrom and hence they itself act as collide। उनको कोई एग्रीगेशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही कोलाइड का काम करते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स नाम से पता चलता है बच्चे, द मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ आर ऑफ बिग साइज, कितने बिग साइज that they are of collider dimension and hence they act as collides, they itself act as collides। जैसे नेचुरली occurring macromolecules like proteins, enzymes, gelatin, and etc., starch, cellulose, they are naturally occurring substances which when dissolved in dispersion medium form macromolecular collide। इसी तरह से बच्चे synthetic, artificial like nylon, polythene, static rubber, polystyrene, since these macromolecules have large size comparable to those of colloidal particles, the solution of such molecules are called as macromolecular colloid solution। कहते क्योंकि इन मैक्रोमॉलिक्यूल का साइज लार्ज एनफ इतना बड़ा होता है, इट इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इसलिए जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं वी कॉल देम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। सच सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, इनके जो बनाए गए सॉल्यूशन होते हैं बच्चे वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, है ना। ज्यादातर लायोफिलिक कोलाइड इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ज्यादातर, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके बाद है बच्चे एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स जब जिनको हम माइसिल्स भी कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कोलाइड्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कोलाइड है इन 3 टाइप्स में जो हम पढ़ रहे हैं आज की जो क्लासिफिकेशन, उसमें जो हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड और माइसिल। ये क्या है बच्चे, कहता है सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन लो होती है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जब आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं डिस्पर्शन मीडियम में, दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग एंड फॉर्म कोलाइड, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग एंड फॉर्म कोलाइड। एसोसिएट करना शुरू कर जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर में जैसे गोल्ड है, इट हैज नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे क्या है बच्चे, एट लो कंसंट्रेशन दे आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइट एंड एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्रीगेट टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड्स। हायर कंसंट्रेशन भी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चे, एसोसिएटेड कोलाइड्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कहता है ये जो कोलाइड्स हैं इस कैटेगरी के, इनको हम माइसिल्स भी कहते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus formed are called as माइसिल्स। एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो इनके केस में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, माइसिल्स। माइसिल बनाने के लिए मैंने कहा ना कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, हायर कंसंट्रेशन पे दे बिहेव एज कोलाइड्स। तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन तो चाहिए होगी ना फॉर देम टू एक्ट एज कोलाइड, मिनिमम कंसंट्रेशन, so that is called as critical mycilization concentration। ये माइसिल भी इनको नाम दिया है, so that concentration is called as critical mycilization concentration। the minimum concentration above which micelles are formed is called critical mycilization concentration, EMC। सोप्स हमारे जो हमारे साबुन है बच्चे आप घरों में यूज करते हैं, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, दे फॉर्म associated colloids or micelles, and for soaps EMC value is 10 raised power -3 mole per liter। मतलब जब आप इतना इनका डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में 10⁻³ मोल्स 1 लीटर में, तब जाके ये बनाएंगे क्या बच्चे, एसोसिएटेड कोलाइड, जिनको हम माइसिल्स भी कहते हैं। एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रॉफ्ट टेम्परेचर।
दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर। सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बच्चे। लेट अस इलुस्ट्रेट द मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोप। व्हाट इज सोप? सोप is sodium salt of higher fatty acid. Higher fatty acid, जैसे palmitic acid, stearic acid। इसमें जो R है बच्चे, it is a long hydrocarbon chain. R is long hydrocarbon chain. 15 carbon atom, 16 carbon atom, 17 carbon atom। ठीक है। इसमें बच्चे जो आपका सोप है, इसमें दो पार्ट्स हैं। R, which is long hydrocarbon chain, is hydro या बच्चे फोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, इसका स्ट्रक्चर समझ ले आप। और जो ये वाला हिस्सा है सीरो नेगेटिव, इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वर्ड यूज कर रहा मैं, मतलब वाटर की बात कर रहा। हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग। वाटर है, आप देखें, इट्स वन पार्ट इज नॉन पोलर एंड द अदर पार्ट इज पोलर। द नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, द पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं बच्चे, व्हेन यू डिसॉल्व द सोप इन वाटर, क्या होता है? एट लोअर कंसंट्रेशन इट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। ये सिंपली इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ये आयोनाइज हो जाता है। पानी में आप इसको डालते बच्चे, ये क्या हो जाता है? आयोनाइज। इस तरीके से एट लो कंसंट्रेशन बात कर रहा हूं। आपने सोप लिया, पानी में डिसॉल्व किया, RCOO नेगेटिव, Na positive. These are soap particles. फिर R is a long chain। जैसे देखें यहाँ एग्जांपल भी दिया, सोडियम स्टीरेट सोप, E17H35 R की वैल्यू है ना। तो एट लो कंसंट्रेशन इट बिहेव एज क्या बच्चे? एज इलेक्ट्रोलाइट। एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चे। When dissolved in water, soap molecule dissociate into RCO negative and Na positive. सोडियम पॉजिटिव आयंस गो इनटू सॉल्यूशन। वो किसमें चले जाएंगे? सॉल्यूशन में। RCOO negative ions consists of two parts, as बताया, long hydrocarbon part which is hydrophobic and the polar which is hydrophilic, COO negative one. RCOO negative ions are present on surface with their COO negative in water and hydrocarbon chain are staying away from it. कहता है जब आप सोप को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आयन सीधे चले जाते हैं बच्चे के इसमें सॉल्यूशन, जबकि जो RCOO नेगेटिव है वो सरफेस पे रहता है और इसका जो COO नेगेटिव है वो सॉल्यूशन में होता है। COO नेगेटिव पार्ट वाटर में होता है और R पार्ट अवे फ्रॉम इट, यानी कि सरफेस की तरफ रहता है। R पार्ट सरफेस की तरफ रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चे ध्यान से देख ले कि RCOO negative ion consists of two parts, long hydrocarbon part which is hydrophobic or water hating, and the polar part which is hydrophilic or water loving। ठीक है। RCOO negative ions therefore present on surface, ये पानी में नहीं जाते क्योंकि इसका जो R पार्ट है वो पानी में नहीं जाना चाहता, वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। विद देयर COO negative in water, उसका जो COO नेगेटिव हिस्सा है वो पानी में रहता है। इस तरीके से रहते हैं, मतलब सरफेस पे रहते विद COO नेगेटिव इन वाटर। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के अंदर रहता और जो R पार्ट है वो सरफेस पे रहता बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो होता क्या है, ये समझने की कोशिश करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है नेचुरली और सरफेस पे RCOO नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव आयन यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। ये जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है? इट पुल्स द RCOO नेगेटिव इनसाइड द सॉल्यूशन।
पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाता कि ये R0 नेगेटिव आयंस को अंदर खींच लेता। अब R0 नेगेटिव आयंस सोल्यूशन के अंदर आ गए, दे आर इन सोल्यूशन। किसने पुल किया बच्चे? सोडियम पॉजिटिव ने। कब पुल किया? जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, ये सोल्यूशन के अंदर आ गई। आर अब क्या है? आर को बड़ी प्रॉब्लम होगी। आर हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर में रहना नहीं चाहता है। इट वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम वाटर, ये पानी से दूर रहना चाहता है। तो इसी कोशिश में ये क्या करते बच्चे? R0 नेगेटिव, मैं तो एक ड्रा किया ना, ये तो बहुत सारे होंगे इकट्ठे हुए। तो जो R0 नेगेटिव है, दे स्टार्ट एसोसिएट इस तरीके से करना शुरू करते कि R पार्ट इज इनसाइड एंड C नेगेटिव आउटसाइड टुवर्ड्स वाटर। R पार्ट इज अवे फ्रॉम वाटर, जैसे स्फीयर होता बच्चे, स्फीयर के अंदरले हिस्से में कौन होंगे? R, पानी से दूर। और सरफेस पे कौन होगा बच्चे? सीरो नेगेटिव, नेगेटिव वाला हिस्सा जहां होगा। R जो पॉजिटिव है वो बाहर होगा। एग्रीगेशन एसोसिएशन शुरू कर देते। क्यों शुरू करते? ऐसा क्यों होता? बिकॉज R हैज नो टेंडेंसी टू रिमेन इन वाटर, इट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम वाटर, पानी से दूर भागता ये। तो इसी कोशिश में ये कोशिश करता, ट्राई करता पानी से दूर रहने की। इसी कोशिश में ये क्या बनाता बच्चे? माइसेल्स। इट स्टार्ट एग्रीगेटिंग एंड फॉर्म माइसेल्स, ठीक है ना। At higher concentration, that is above CMC, these ions are pulled into the bulk of solution by sodium positive ion and aggregate in spherical form. मैंने कहा ना sphere form, sphere, और sphere के जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें R होगा, और जो सरफेस है वहां पे क्या होगा बच्चे? सीरो नेगेटिव। वो हाइड्रोफिलिक है, सीरो नेगेटिव, उसको कोई परेशानी थोड़ी है, वो तो वाटर के साथ रहना चाहता है, वाटर पोलर है, ठीक है। विद देयर हाइड्रोकार्बन aggregates in spherical form with their hydrocarbon chain pointing towards center and zero negative part remaining outward on surface. Aggregate thus formed is known as ionic micelle. इसको बोलते बच्चे, ये डायग्राम यहाँ पे ionic micelle. These micelles may contain up to 100 such ions. 100 तक हो सकते हैं इसमें। डिटर्जेंट भी बच्चे ऐसे ही बनाते हैं। डिटर्जेंट्स आल्सो फॉर्म such type of क्या बच्चे? Micelles. They contain polar groups SO42 negative with a long hydrocarbon chain, hydrophobic. So mechanism is same as in the case of salt. अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट और डिस्कस किया गया है, कल को आपको एग्जाम में शॉर्ट आंसर के तौर पे भी आ सकता कि सोप, हमारे जो फैब्रिक्स हैं उनके सरफेस पे ग्रीज लगी हो, ग्रीज, उसको कैसे रिमूव करता? हाउ सोप is able to remove grease from the surface of our fabric. कहता जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है is due to formation of micelles, माइसिल फॉर्मेशन होती वो, उसकी वजह से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है जिसकी वजह से ये ग्रीज को रिमूव करने में सफल होता है। आपको बताता हूँ बच्चे, जैसे सपोज ये ग्रीज का पार्टिकल है, दिस इज ए पार्टिकल ऑफ ग्रीज, ग्रीज इज हाइड्रोफोबिक। आप सिंपली पानी से इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे फैब्रिक से, ये रिमूव नहीं होगी बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक। अब हमने क्या किया? हमने साबुन डाला, साबुन का जो आर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो ग्रीज में डिजॉल्व हो जाएगा, ग्रीज में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो सीरो नेगेटिव वो बाहर रहेगा, जिसकी वजह से ग्रीज के पार्टिकल है दे स्टार्ट एक्वायरिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज, छोटे छोटे पार्टिकल, और वो बिखरना शुरू हो जाएगी ग्रीज। ऐसे ग्रीज क्या बच्चे? एसोसिएटेड है, इकट्ठी है, पानी उसको तोड़ नहीं पा रहा बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक। लेकिन जैसे हमने साबुन का इस्तेमाल किया, सोप का इस्तेमाल किया, तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस के पार्टिकल्स, ग्रीस के अंदर क्या बचे? पेनिट्रेट करना शुरू कर गया, ग्रीस के पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर गया, जिसकी वजह से ग्रीस के पार्टिकल बिखरना शुरू हो गए और साबुन, पानी ने उनको रिमूव कर दिया। दिस इज हाउ the soap is able to remove grease from the surface of what? Fabric by forming micelle. Micelle type बनाना बच्चे, ये ग्रीस का पार्ट थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, तो ये ग्रीस का पार्टिकल है, ये साबुन, सोप के पार्टिकल,
क्या कर रहे हैं? ये वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे इन्होंने क्या बनाया, पानी में माइसेल। ये ग्रीस के पार्टिकल्स के अंदर घुस रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, आर पार्ट जो इनका है और जो नेगेटिव पार्ट है वो बाहर रह रहा है। तो दे आर फॉर्मिंग माइसेल्स, माइसेल बन रहे हैं ना। तो कहता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स बाय लायोफोबिक पार्ट ऑफ सोप विद ग्रीस डिपॉजिट। In fact, hydrophobic end of the soap dissolves in grease to form tiny micelles, which are negatively charged. छोटे छोटे पार्टिकल बना देगा, टिन्नी माइसेल्स बिखेर देगा ग्रीस को। So due to negative charge, the grease micelles cannot come close to each other. छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए एक दो ऐसे, पहले ये जुड़े हुए थे बिल्कुल, ये ग्रीस है, ठीक है ना। अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बिखरना शुरू हो जाएंगे, दे विल रिपेल, ठीक है ना, और टूट जाएगी ग्रीस, पानी के साथ बह जाएगी, चार्ज भी आ गया है, वाटर इसको वॉश आउट कर देगा। तो कम क्लोज टू ईच अदर एंड दस आर मूव्ड बाय वाटर। तो सोप रिड्यूसेस ऑयल और ग्रीस टू कोलाइडल साइज। सोप क्या करता, ऑयल या ग्रीस जो हमारे फैब्रिक पे स्टिक कर रही होती है उसको कोलाइडल साइज में पहले कन्वर्ट करता। कौन से कोलाइड्स, कोलाइड्स बच्चे एसोसिएटेड कोलाइड्स, माइसिल्स, और फिर उनको रिमूव कर बच्चे। वो आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।